शुरू कर दें शर्मा जी? बिल्कुल सर, आप बताइए। बस शुरू कर देते हैं सर। मेंबर आ गए और आते भी रहेंगे, अभी ये संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। वेरी गुड इवनिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ पूसा रोड सीपी स्टडी सर्कल on today's webinar on startup a detailed overview. On this subject, our own CS Vivek Sharma ji is with us. I welcome you, sir. I also welcome on the attendee on behalf of our study circle. Vivek Sharma ji is new to our study circle, so it is my duty to briefly introduce him. Vivek Sharma ji, Bachelor in Commerce, fellow member of Institute of Company Secretaries. Vivek Sharma ji has a total of more than 11 years of experience providing consulting services to Indian and foreign companies and providing secretarial legal opinions also. His areas of practice has been Companies Act, FEMA, IPR, GST, securities law and startup. He is an eminent and regular speaker at various seminars and visiting faculty of EDPs, MSOPs, PDPs and organized by the Institute of Company Secretaries of India, Northern Region and also by other professional institutes. His academic interest motivated him to be the active speaker on many subjects relating to corporate law, legal and secretarial audit, doing business in India, corporate restructuring, takeover, cyber law and due diligence process. Mr. Sharma has been the visiting faculty member of ICSI, ICI, Law and Management colleges and various universities and enjoy interaction with the professional at all levels. He has played role of moderator of more than 5 certificate courses organized by Institute of Company Secretaries of India. This is the brief profile of today's our speaker. I once again welcome you, sir. And members are more interested to know how to start startup and what are the formalities, and our member are new, so I request you please cover all the things. Thank you and over to you, sir. Okay sir, thank you very much Rajesh sir for giving me this opportunity and thanks all the participants for attending my session. So जो आज का टॉपिक है वो स्टार्टअप के बारे में, जैसे अभी सर ने बताया कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, स्टार्टअप्स क्या हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ एंटिटी एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कि हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं। देन इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, देन द ओवरव्यू ऑफ स्टार्टअप इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सम जनरल मिस्टेक जो कि एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना है जो जब स्टार्टअप एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। सो स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप। सो टाइप ऑफ अ बिजनेस ओनरशिप इन इंडिया। अभी हमें सबसे पहले कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारे पास हम एज अ प्रोफेशनल हैं और हमें अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस है दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सो एनीवन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, so but that is not a separate legal entity, that is not a corporate identity, right? Sole proprietorship held up personally liable for the liability, so liability is unlimited for the sole proprietorship firm. And if we talk about the partnership firm, if more than one person want to start a business, then they can form a partnership firm. A partnership firm can be a two way, either they can start a business as an unregistered partnership firm and second one is a registered partnership firm. And another form is that is the upper version of a partnership firm. In this case, that is the liability is limited, so then the limited liability partnership anyone can incorporate. And another option is company, so we can incorporate a company that is for the separate legal entity and separate advantages we can adopt, like a separate legal entity, perpetual succession, limited liability shares and their transferabilities, right? So type of a company: one person company, private limited company, public limited company, section 8 company. So every identity have an advantage and disadvantage, right?
इफ यू टॉक अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सो देयर इज एडवांटेज कि वन मैन शो है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, नेम इज नॉट सिक्योर्ड कि अगर आपने कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस स्टार्ट किया, आपका नेम रिजर्व नहीं हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे, योर नेम इज नॉट सिक्योर्ड, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, advantage is like it less compliances है, but liability is unlimited and name is not secured. And if you talk about LLP, limited liability partnership, in that scenario liability is limited, no compulsory or no requirement of a compulsory audit. There is a threshold limit in the LLP like 40 lakh rupees capital, 40 lakh rupees turnover and 25 lakh rupees capital. एंड अगर आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करती है, इन दैट केस आपको ऑडिटर से ऑडिट नहीं कराना है. लाइक आपको सिर्फ एक आरओसी की कंप्लाइंसेस करनी है और इनकम टैक्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करनी है. बट डिसएडवांटेज इज अ हायर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस. इफ यू टॉक अबाउट द कंपनी, राइट, so company liability is limited, credibility and reputation. But if we talk about the incorporation and retention of a company, अगर हम कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं तो कॉस्ट आर हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ. तो आज की डेट पे बहुत सारे लोग कंपनी बनाने से पहले ये बहुत सारा उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हम अगर कंपनी बनाते हैं तो कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हैं और कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है. अगेन कंपनी के वे हैं कि हम 1% कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं. बट ओपीसी की एडवांटेज क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप फर्म. बट डिसएडवांटेज ये है कि आपको पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ तक करनी है. इफ यू एक्सीड दिस थ्रेशोल्ड लिमिट देन विद इन 6 मंथ आपको इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड मोड ऑफ आइडेंटिटी कि जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. सो इनकॉर्पोरेशन द स्टार्टअप, register with the startup initiative. So if we want to incorporate a company, I am taking the example, अभी हमारी डेफिनेशन में आएगा कि अगर हम स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनको एलिजिबल स्टार्टअप की डेफिनेशंस में रखा गया है. If we take the example of company, so first we required a director and subscriber digital signatures and the proposed director have a valid DIN number, reservation of name by professional promoters, drafting of MOA, consent declarations, and the filing of forms, and then we will get the certificate of incorporation, PAN and TAN of the company. After incorporation of a company, ये सारी चीजें हमें अपने क्लाइंट को बताना है. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि कंपनीज तो बन जाती हैं, बट कंपनी बनने के बाद क्या होता है, उसकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो इमीडिएट कंप्लायंसेस होती हैं वो लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस स्टार्टअप वो फेल हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस, लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से भी हमारा स्टार्टअप फेल हो सकता है. सो उसमें जैसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, बैंक अकाउंट, ओपनिंग ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. इफ यू इनकॉर्पोरेट एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बिजनेस है या नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के माइंड में आता है कि अभी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट बिकॉज कि अभी हमारा बिजनेस नहीं है. बट एज पर द स्टेट्यूटरी एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना कंपल्सरी है. देन मेंटेनिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, फाइलिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लेटर हेड ऑफ द कंपनी शुड बी देयर कि लेटर हेड में क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स जो हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए सेक्शन 12 के अंदर क्या क्या चीजें कंपल्सरी हैं. क्योंकि आज भी हम लेटर हेड देख रहे हैं, 2013 में एक्ट आया था, आज 2022 में है, आज भी बहुत सारे लेटर हेड्स एज पर द कंपनीज एक्ट नहीं है. और लॉ में क्लियरली मेंशन है कि 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी अगर आपका लेटर हेड क्लियर एज पर द कंपनीज एक्ट नहीं है. देन इश्यू ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट. अब इश्यू ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट, देन स्टैंप ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, ये बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट है. 2010 से पहले क्या होता था कि हम शेयर सर्टिफिकेट तो इशू कर देते थे और स्टैंप ड्यूटी के वे में हम क्या करते थे, एक रेवेन्यू स्टैंप होती थी वो लगा देते थे. अचानक ही 2010 में एक रेवेन्यू अथॉरिटी ने इशू करने लगा, सर्कुलर इशू किया, जिसमें उन्होंने चेक किया कि कौन सी कंपनीज है जिन्होंने शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैंपिंग पे किया है. तो उसका प्रोसीजर ही अलग है. और ये अभी जब हम एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी करते हैं तब तो ये नहीं समझ आता, बट व्हेन जैसे अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं, फंडिंग्स की बात करते हैं, तो इन दैट केस आपके पास वैलिड शेयर, क्योंकि विदाउट हैविंग पेइंग अ स्टैम्प ड्यूटी ऑन द शेयर सर्टिफिकेट वो इनवैलिड है. कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं है वो इनवैलिड है. सो अगर कोई भी आपके पास इन्वेस्टर्स आ रहा है, चाहे एंजल इन्वेस्टर्स आ रहा है, वो आपको फर्स्ट डे से ही आप जब उसकी अलॉटमेंट करोगे तो दे आस्क फॉर अ शेयर सर्टिफिकेट हैविंग अ स्टैम्प ड्यूटी.
वैलिड स्टैम्प ड्यूटी ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। और जब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, तो डिपार्टमेंट विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने प्रीवियसली जो शेयर इशू किए थे, क्या आपने उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे की है? इफ द आंसर इज नो, तो आपको फर्स्ट जैसे यानी कि डिस्टिंक्टिव नंबर 1 से लेकर टिल द इनकॉर्पोरेशन और टिल द फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने बहुत सारे अपनी प्रैक्टिस में चेक किया कि इनकॉर्पोरेशन हो गई, 2 साल हो गया, फंडिंग हो गई, स्टार्टअप चल पड़ा। अब जब फंडिंग हो, जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम वहां पे चेक करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस कराता है, तो ड्यू डिलिजेंस में ये सारे पॉइंट आउट कर लिए जाते हैं, क्या शेयर स्टैम्प ड्यूटी पे शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है या नहीं हुई है। देन मेंटेनिंग द स्टेट्यूटरी रजिस्टर्स एंड मिनट्स एंड द बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, ये सारी चीजें आरओसी की कंप्लायंसेस कंप्लीट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस, जीएसटी की कंप्लायंसेस हो जाती हैं, बट आरओसी की कंप्लायंसेस नहीं होती हैं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं, रजिस्टरिंग विद द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो अगर किसी को भी स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन पे करना है, तो हमें सबसे पहले क्या इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे अभी हमने आइडेंटिटी देखी, क्या क्या ऑप्शंस है। इफ एनीवन वांट्स टू अवेल अ फैसिलिटी और फैसिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो that person must be incorporate a business as a private limited company or a partnership or LLP। यानी कि अब हमने जितनी भी आइडेंटिटीज देखी थी उसमें हमें पता चला सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया, तो आप रिव्यू से बाहर हो गए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ओनली 3 एंटिटीज आर एलिजिबल एज अ स्टार्टअप टू टेक द बेनिफिट ऑफ अ स्टार्टअप इंडिया। तो ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। Public limited company, proprietorship firm, unregistered partnership firm, they are excluded from the preview of the definition of the startup. Then you have to follow the normal procedure for the registration of any business, like obtaining a certificate of incorporation, partnership firm, partnership registration, PAN, and other compliances. Once you get the certificate or registration certificate or certificate of incorporation, then the process is very simple. The entire process is very simple and online. You need to log in a Startup India website and fill up the form. And you have to create your profile. First, you have to create your profile. Once your profile is created on the website, then you can apply for the DPIIT registration. तब आप उसके रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करेंगे। और जैसे ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यू कैन अप्लाई फॉर वेरियस एक्सप्लोरेशन, इंक्यूबेटर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड वेबसाइट्स along with the resources like the learning and development program। स्टार्टअप वेबसाइट को जब आप सर्व करोगे तो वहां पे ऑप्शंस आएंगे, यू कैन सर्च एनी एक्सप्लोरेशन, इंक्यूबेटर्स, मेंटरशिप, and one most important thing is learning and development program. So you can take the part in learning and development program. You can avail the benefit of the government schemes, state policies for the startups. Then get DPIIT recognition, right? This recognition help to avail the basic, अभी हमने किया, अभी हमें की benefits, अभी हम आगे next slide में करेंगे। High quality of intellectual property services and resources, relaxation अभी इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। Relaxation is public procurement norms, self certification, easy winding up, easy to funds of fund, and tax exemptions. So what are the documents required for registration your company or LLP or a registered partnership firm as a startup India वेबसाइट में आपको अगर उसको रिकॉग्निशंस लेनी है, देन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ योर स्टार्टअप, डिटेल ऑफ द डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स एंड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाइक पिच डेक, वेबसाइट लिंक, वीडियो, ये चाहिए। बट अगर ये ऑप्शनल है, देयर इज अ स्टेज। अगर आप स्टार्टअप अप्लाई कर रहे हो एज आइडिएशन, अभी स्टेज ऑफ स्टार्टअप भी हम डिस्कस करेंगे, अगर आप आइडिएशन स्टेज पे हो तो आपको पिच डेक, वेबसाइट लिंक और वीडियो कंपल्सरी नहीं है। Then patent and trademark details again an optional, and PAN number of the company and the basic documents आप लगाओगे तो आपको DPIIT से रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। So recognition certificate में आपको एक recognition number मिलेगा, that is the certificate of recognition and will be issued after the examination of all your document, which is usually to be done 2 to 3 days after submitting all the details। But आपको जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो, उस फॉर्म को भर रहे हो, आपको उसमें स्टार्टअप के अंदर आपको प्रॉपर वे में उसकी एप्लीकेशन फिलअप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। आपको
स्टार्टअप ऑनलाइन फाइल करने, राइट? देयर इज नो पब्लिक डीलिंग एट स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट. So overview of a startup. So startup India is a revolution scheme that has been started to help the people who want to start their own business. These people have an idea and capability, so the government will keep them support to make sure then can implement their idea and grow. The campaign was first announced by the Prime Minister Modi ji in his 15th August 2015 address from the Red Fort. So that is a very much important. So take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerve, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. So अगर हम स्टार्टअप की डेफिनेशंस देखेंगे, 2016 में स्टार्टअप की डेफिनेशन आई, देन अमेंड हुई 2017 में, और लास्ट जो अमेंडमेंट आई 2019 में आई. सो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशंस में अगर हम ब्रीफ में जाएंगे, तो पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन में क्लियरली था कि एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू दी 5 years. तो पहले 5 years था. उसके बाद 2017 में वही मॉडिफिकेशन होगी, एक्सपैंड कर दी स्टार्टअप की डेफिनेशन, 7 years कर दिया. नाउ 2019 में अगेन एक अमेंडमेंट आई जिसमें स्टार्टअप की डेफिनेशन और एक्सपेंड कर दी 10 years. तो आज की डेट में एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. अगेन इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी हमने डिस्कस किया, रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप यानी कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ओनली, और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. एंड at that point of time 2016 में जो टर्नओवर की डेफिनेशन थी, so if it is a turnover of any financial year has not exceed 25 crore, so एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी कि आपकी जो स्टार्टअप होगा 25 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड नहीं करेगा तभी वो स्टार्टअप है. एंड आज की डेट में 2019 में स्टार्टअप डेफिनेशन को एक्सपैंड करके जो लिमिट 25 करोड़ की थी वो 100 करोड़ कर दी. सो टर्नओवर ऑफ एंटिटी ऑफ एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर since incorporation registration has not exceeded 100 crore. So for example, आप LLP हो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, और आपने DPIIT का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, बट आपकी टर्नओवर अगर इससे एक्सीड करी है, so you cannot apply for the DPIIT registration. So you are not covering under the eligible startup. Entity two words. So सिर्फ एंटिटी मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. फर्स्ट तो आइडेंटिटी आपकी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, देन टर्नओवर, देन एंटिटी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन. आपका जो वर्क होगा वो टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस और सर्विस, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस. सो अगर आप, देयर इज अ टू वे, या तो आप इनोवेट कर रहे हो तभी आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ रहे हो, innovation, development, improvement of product or process or services, or if it is scalable business model with the high potential of employment generation or wealth creation. अगर आपका ऐसा business है like a manufacturing unit है, then scalable business model है with the high potential of employment generation and wealth generation. In that case also you are falling under the startup certificate. But if there is a one condition, that entity formed by, वो excluded है अगर कोई भी आइडेंटिटी है जो फॉर्म हुई है बाय स्प्लिटिंग ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप. फॉर एग्जांपल आपका मर्जर हुआ, या आपने एक बिजनेस कर रहे थे, आपने दूसरी बिजनेस स्टार्ट कर लिया टू टेक द बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप, दैट इज नॉट अलाउड. सो स्टार्टअप मींस एन एंटिटी, जो हमने डिस्कस कर लिया कि टर्नओवर 100 करोड़ से मोर नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनोवेशंस में होना चाहिए. सो क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टार्टअप नीड्स टू बूस्ट अप द प्रमोट स्टार्टअप एंटरप्राइजेस, टू बूस्ट अप एंड प्रमोट स्टार्टअप एंड एंटरप्राइजेस. द कोर ऑब्जेक्टिव is to generate a maximum employment and to boost up the banking and financial sector and be a job creator. Then why remain a job seeker? Become a job provider. So become a job creator. जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्टार्टअप के अंदर जैसे पिच, वेबसाइट, वीडियो, वो लिंक्स के रिगार्डिंग में बात कर रहा था. अगर आप DPIIT की वेबसाइट पे जाओगे और स्टार्टअप के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हो, आइडिएशन की स्टेज पे हो, तो आपको अपनी पिच, वीडियो, टेस्टिमोनियल्स
दैट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है क्योंकि अभी आपका आइडिया है. दिस इज द स्टेज, ये स्टेज है स्टार्टअप के. दिस इज द स्टेज वेयर द एंटरप्रेन्योर हैज एन आइडिया इन हिज माइंड व्हिच ही वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. So you are on at a ideation stage. This is the startup funding stage where the entrepreneur has an idea and is working to bringing into a life. Then there is another step that is called the validation. Validation is a stage where you begin to get the word out about your product and gain your first customer. So, यानी कि आपका जो आइडिया को आपने कन्वर्ट किया और आपके कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए. वेयर यू फाइंड आउट वेदर और नॉट योर कंपनीज आर ट्रूली वाइबल. पायलट मोड पे आपने अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया. Then also called a seed stage. इसको हम seed stage भी बोल सकते हैं. Seed stage where the startup conduct a field trials, test of a product of a few potential customers, onboard mentors, and build a formal team. And startups at this stage generally explore the following funding sources. Then early traction. That is another form of a startup. This stage comes when the startup has launched its product or services in the market. Key performance indicators such as a customer base, revenue, app downloads become important at this stage. So that is another form, that is a third stage of the startups. And last one is a scaling. At this stage, startup try to add revenue at the faster rate while also increase efficiency, where the funding routes raised by the startup are series B, C, D, and E, and common funding source utilized by the startup in this stage. तो आपको स्टार्टअप के स्टेजेस इस वे से ही निकलने होंगे. और अगर आप आइडिएशन स्टेज पे हो तो आप जब स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स और वेबसाइट्स है वो कंपल्सरी नहीं है. So there is a important definitions or jargons used in the startups. So startup incubators. What do you mean by the startup incubators? क्या है, right? So incubators जैसे आपको with the name is suggest incubators. An incubator is a workspace created to offer early stage startup access to all the resources they need under one roof. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप है, जब आइडिया आ रहा है, आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं हम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इन दैट केस इंक्यूबेटर्स जो हैं वो आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज, राइट? दे प्रोवाइड ऑफिसेज, स्पेस, mentoring, business services, funding, and networking opportunity to the incubators. Incubator help in the following: help the business basics, networking opportunities, marketing assistance, high-speed internet access, accounting, financial management assistance, access to the bank loan funds, connection to the strategy partners, help with the business etiquettes and intellectual property matters. Some famous incubators in India like IIT, IIM, People First. I am very happy to announce कि ये जो DTU Innovation है, they have hired me as a mentor, as a consultant to their incubation, क्योंकि मैं उनके स्टार्टअप्स को गाइड कर रहा हूँ और इनकी कंपनी के कंप्लायंसेस कर रहा हूँ. So DTU, Delhi Technical University. And another form is the accelerator. First is the incubation, and second is the accelerator. So business accelerator are the organization that offer a company a wide range of support services and an opportunity to acquire a fund to new companies, startups के लिए. Accelerator is typically for a 3 or 4 months program for a startup at the early traction and scaling stage. जो हमने अभी देखा, traction and scaling stage तक ही से पहले ही accelerators रहते हैं. Accelerator may take a set of amount of seed equity from the startup in exchange of a capital and mentorship. So business accelerator are the organization that offer a wide range of a support service and opportunity to acquire a fund to new companies. So there is an importance and there is a difference between the accelerator and incubators. So accelerator, they enroll a company in a month or long period. There is a shorter period of a time. They offer a company access to capital investment in return of equity. Design of this program provide the best of both the world of startup as well as the investors. The investor don't need to waste their time in tracking and evaluating the startups. And the accelerator like a gold mines of a resource of a honor of a startup. And incubators की बात करें तो it is an organization that helps the startup by providing a shared option space. The support young enterprises by providing a networking opportunity. They run as a not-profit organization. They are better than the accelerators. अगर हम फंडिंग्स की बात करते हैं, अभी हम ऐसे जर्कन्स यूज कर रहे हैं कि क्या क्या यूज होते हैं, जैसे एक्सीलेटर्स और इंक्यूबेटर्स की बात करें. एंजल इन्वेस्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द एंजल इन्वेस्टर्स? सो एंजल इन्वेस्टर्स आर आल्सो नोन एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर और एंजल फाउंडर.
and is a high net worth individuals who provide a financial backing for a small startups or entrepreneurs, typically in exchange of ownership equity in the company. Offer angel investors are found among entrepreneurs, families, and friends. Right. So we can move ahead. Seed funding. What do you mean by the seed funding? Technically, seed capital is the initial capital used while starting the business. This capital can come from the founders, friends, or family. However, many people mistake seed capital to be fund needed to be simply cover the initial expenses and avoid the use of a personal. Most of the time हमने देखा कि personal expense को use करने मतलब को avoid करने के लिए seed funding लिया जाता है. So seed funding, that is the biggest mistake. So seed funding allow you to explore the business idea and transform into viable product or a service that further attract the venture capitalist. तो इसके बाद ही VCs आते हैं, venture capitalists आते हैं, and is a groundwork. अगर हम बात करें सीड फंडिंग के लिए, इट इज अ ग्राउंड वर्क, क्योंकि कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में आएगा, आपके स्टार्टअप में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे पहले आपका ये चेक करेगा कि आपकी फैमिली, फाउंडर, फ्रेंड्स किसने इन्वेस्ट किया हुआ है. इट इज द ग्राउंड वर्क you do for your series A funding. A business founder must have an exact map how to use a seed capital in the best way to ensure a smooth transaction in advanced stage of the business. So key advantage जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल. सर यहाँ एक क्वेश्चन है. हाँ जी बताइए. कि स्टार्टअप में जैसे आपने टर्नओवर बताया कि 100 करोड़ की लिमिट है, तो क्या इसमें कोई कैपिटल की मिनिमम या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है? नहीं सर, कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है. अच्छा, मिनिमम तो टर्नओवर क्राइटेरिया सर. अच्छा तब ठीक है सर, ठीक. राइट. देन इंटेलेक्चुअल, जो हमारे को अगर आपने DPPIT में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो क्या क्या की बेनिफिट्स हैं विच यू कैन अवेल. की एडवांटेज ऑफ स्टार्टअप इंडिया, जो आप इनिशिएटिव के लिए क्या क्या बेनिफिट. सबसे पहला है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो सबसे पहला क्या है कि अगर आपने DPPIT से आपका सर्टिफिकेट आ गया तो आप पेटेंट, जब आपने पेटेंट अप्लाई किया उसकी एग्जामिनेशन होती है फॉर्म 18A के अंदर. अगर आप स्टार्टअप हो तो आपकी एग्जामिनेशन फास्ट ट्रैक पे होगी अगर आपके पास DPIIT का सर्टिफिकेट है. तो फास्ट ट्रैकिंग ऑफ अ स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन, तो उसकी आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी मूव करेगी इफ यू हैव अ DPIIT सर्टिफिकेट. देन पैनल ऑफ अ फैसिलिटेटर टू असिस्ट इन IP एप्लीकेशन. सो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के फैसिलिटेटर्स हैं. आप ट्रेडमार्क और पेटेंट के फैसिलिटेटर्स की लिस्ट है स्टार्टअप इंडिया के साइट पे. आप उनकी सर्विसेज ले सकते हो. अब उनकी सर्विसेज में आपको पेमेंट नहीं करनी है. इफ यू आर अ स्टार्टअप यू हैव टू मेक अ पेमेंट ओनली द स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट फीस. आपको सिर्फ गवर्नमेंट की फीस पे करनी है, उनकी प्रोफेशनल फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी. तो फैसिलिटेटर की फैसिलिटीज दी गई हैं टू द स्टार्टअप. सो एंड रिबेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. अगर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो और आपके पास DPIIT का सर्टिफिकेट है तो 80% की रिबेट मिल जाती है. वैसे 8,000 रुपीज की गवर्नमेंट फीस है, तो 80% करके 1,600 रुपीज देने पड़ेंगे आपको फॉर अ वन पेटेंट एप्लीकेशन. मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपने 2-4 इन्वेंशन कर लिए तो डिवाइडेड. सिमिलरली इन दी ट्रेडमार्क में गवर्नमेंट की फीस ऑफलाइन के लिए 10,000 आती है, तो 50% वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि 5,000 रुपीज पर क्लास. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास. अगर आप FMCG प्रोडक्ट में हो फॉर एग्जांपल, तो आप ट्रेडमार्क में 4 to 5 क्लासेस में फॉल कर रहे हो, तो आपको 5,000 इंटू में 5 भी बोला तो 25,000 का डिस्काउंट मतलब रिबेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है अगर आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है. तो सबसे पहले तो IPR में आपको बेनिफिट दे रही है. देन रिलैक्सेशन इन अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स. सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म में जैसे हम देखते हैं कभी भी कोई भी टेंडर्स निकलते हैं तो उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको इतनी डिपॉजिट रखनी पड़ेगी, अर्नेस्ट मनी रखनी पड़ेगी. इफ यू आर हैविंग अ स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, DPIIT का सर्टिफिकेट है, तो आप एग्जम्पशन ले सकते हैं लाइक अ प्रायर टर्नओवर, प्रायर एक्सपीरियंस और EMP. एंड आप अपने स्टार्टअप को जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट E-मार्केट पोर्टल है, जेम पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं. देन सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर द लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्टअप्स आर अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाइड देयर कंप्लायंसेस. सो 9 लेबर लॉज के अंदर सेल्फ सर्टिफाइड किए गए हैं, 3 एनवायरमेंटल लॉ हैं जिनके अंदर आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन है, आपको सर्टिफाई करके आप अपने कंप्लायंसेस कर सकते हो, राइट. And to reduce the regulatory burden on startup, they are allowing to keep them on fixed core business and keep
compliance is low cost. Even आपकी inspection, अगर हम inspection करते हैं, inspection 3 years के लिए आपकी inspection भी waive off कर देते हैं for the labor and environmental law. Faster exit for a startup. So Ministry of Corporate Affairs has notified startup as a fast track firms. So अगर आप startup हो और आपको winding up करनी है, तो as compared to other companies, आपका जो मैटर है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो फास्टेस्ट मूव होगी. टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्स एग्जम्पशन. सो द रिकॉग्निशन स्टार्टअप दैट आर ग्रांटेड इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट, उनको एक अलग से, ये सिर्फ DPIIT से नहीं होगा. फर्स्ट आपको DPIIT का सर्टिफिकेट लेना, स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लेना. फर्दर एक और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, that is called, you can take a permission from the inter ministerial board certificate. फिर आपको 3 years out of the 10 years, जो आपके 10 years तक ही आप स्टार्टअप की बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वंस यू क्रॉस द 10 years टाइमलाइन, तो आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे. तो 3 years के लिए आप कोई भी टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर कर सकते हो, बट वो सिर्फ इस DPIIT के सर्टिफिकेट से नहीं होगा, उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा. और अगर हम बात करें आज की डेट में, मोर देन 50,000 स्टार्टअप के लिए DPIIT के सर्टिफिकेट इशू कर चुकी है. और अगर हम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, तो ओनली आउट ऑफ 50,000 ओनली 400 स्टार्टअप को ही ये सर्टिफिकेट मिला है. मीन्स इट इज नॉट, मतलब नॉट ईजी कि ये हर किसी को मिलेगा. ठीक है, तो 50,000 अगर आपको DPIIT सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, उसमें से सिर्फ 400 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, उनको परमिशन गारंटी है. स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड. विवेक जी, एक मिनट. यस, ये जो 3 year कंसेक्यूटिव पीरियड है, ये हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं या आपको इनिशियल लेने पड़ेंगे? नहीं सर, ये हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. क्योंकि इनिशियल तो लॉस ही होता है. यस, एग्जैक्टली. इनिशियली 2 year 3 year तो लॉस होगा, फिर ब्रेक इवन पे आएगा, फिर प्रॉफिट मेकिंग पे आएगा. तो मुझे फॉर एग्जांपल पता चल गया कि फर्स्ट 2 year 3 year मेरा लॉस में चलेगा, 4 से लेके 5 year प्रोजेक्शन में आया, ब्रेक इवन पे आया, मैं 6th 7th और 8th ईयर को अपना टैक्स एग्जम्पशन ले सकता हूँ. ठीक, थैंक यू. सर ये डेट बढ़ी है अभी, ये जो आप कह रहे हैं कि ये बढ़ी है. ये डेट पहले 2021 थी, इस फाइनेंस एक्ट के हिसाब से ये 2022 हुई है. तो ये भी तो चली गई सर 1 अप्रैल 2022 चली गई सर. वो आप, हमारा सेशन लेट लगा ना हमारा सेशन लेट लगा, तो हो सकता है फाइनेंस एक्ट बजट में आगे बढ़ जाए. अच्छा. यस सर. तो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर, पहले ये 21 था, और जो 1 year जो हुआ वो 22 यहाँ से हुआ. ठीक है विवेक जी, ये सिर्फ 80IAC के लिए है, 22 के सनसेट क्लॉज, बाकी तो नहीं है ना? नहीं सर. थैंक यू. Then exemption for the purpose of section 56 subsection 2 clause 7B. ये भी बड़ा खतरनाक है सेक्शन. yes, अगर इस सेक्शन में आपने कोई भी शेयर इशू किए हैं और वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, प्रीमियम पे हैं, तो उस पे जो टैक्स है उसकी एग्जम्पशंस मिल जाएंगी. अगर आपने, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, राइट. और एक डिक्लेरेशन है, फॉर्म 2 है, उसकी डिक्लेरेशन देनी होगी, तो आपका ये बेनिफिट, आप इसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो. सो ये थे हमारे बेनिफिट्स. आगे अगर हम चैलेंज की बात करें, तो चैलेंज फेस बाय द स्टार्टअप्स. तो एक रीसेंट स्टडी है जिसमें ये आया है कि एंटरप्रेन्योर इंडिया बाय द IBM इंस्टीट्यूट फाउंड 90%, अगर हम बात करें इंडियन स्टार्टअप जो है वो फेल हुए हैं विद इन फर्स्ट 5 years. और उसका जो कॉमन रीजन है वो लैक ऑफ इनोवेशन है. क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या स्टार्टअप कर रहे हैं, बट सबसे पहला जो कीवर्ड है ना वो इनोवेशन है. हमें अगर सक्सेसफुल स्टार्टअप करना है तो आपको इनोवेशन होनी चाहिए. तो द मेन रीजन फॉर अ फेलियर इज लैक ऑफ इनोवेशन. 77% of venture capitalist survey believe that Indian startup lack new technologies. Again, planning. As the saying goes, if you fail to prepare to fail. So don't leave the details to later. Lack of innovation, human resources and poor business ethics, right? और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि हम वेस्टर्न बिजनेस मॉडल को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं वेस्टर्न बिजनेस मॉडल्स को. तो ये फंडिंग मेजर प्रॉब्लम है. अगर हम स्टेजेस ऑफ फंडिंग की बात करें, तो सबसे पहली जो फंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्री सीड फंडिंग. Vivek ji, excuse me, can we go back to the previous slide? Yes sir. Because this was my question. The reason for the failure of या तो 90% मेरे हिसाब से तो फेल हो जाते हैं.
This lack of innovation, right. can you elaborate a little bit? Sir, Because you know most of the entrepreneurs, right, the startup entrepreneurs, they right, have an idea which they are very positively passionate about. right. So what fails them at that stage? What फेज देम एट दैट सर, एज पर दिस कि जैसे भी मैंने नेक्स्ट में लाइन में लिखा हुआ है, मेजर रीजन इज ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ अ बिजनेस मॉडल. देखो, इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया बिजनेस आना चाहिए. देर इज नो सिंगल वर्ड की अगर हम बोलें कि इनोवेशन की डेफिनेशन क्या है. इनोवेशन भी न्यू, कुछ न्यू कंसेप्ट हो. अब पेटेंट में एप्लीकेशन तो हम फाइल कर देते हैं, लेकिन हम प्रूव करने से रह जाते हैं कि हमने इनोवेट क्या किया है. इन्वेंशन ही नहीं हुई होती, हमने सिर्फ बहुत सारी कुछ प्रोसेस ऑलरेडी चल रहे थे, दो प्रोसेस को लिया, कॉपी पेस्ट मारा और उसको हमने स्टार्ट कर दिया. बिजनेस मॉडल को कॉपी पेस्ट किया और स्टार्ट कर दिया. ये है. तो वी शुड हैव अ इनोवेशन, न्यू कंसेप्ट होना चाहिए. Can I continue a little, bhai? I'm Yes. sorry for the other viewers and listeners. No, yes, See, Vivekji, initially you said that the idea which is in their mind and yet to be brought to paper. right, Now that is their first stage. right, Then they innovate and bring it on paper and develop Right. that idea. right, sir. So this lack of innovation is at the first stage or second stage? Sir, there is a two way. There is a second stage. और जो मैंने आपको बताया वो एक स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बताया था. और यहाँ पर हमने जो एक स्टडी देखी है, स्टडी में क्या हुआ कि स्टार्टअप इनोवेशन की वजह से फेल हो रहे हैं. मतलब एग्जिस्टेंस में आ गए, बिजनेस सेटअप किया और फेल हो गए. आप कंफ्यूज ये हो रहे हो कि एक रजिस्ट्रेशन की पॉइंट से बात कर रहे हो और एक बिजनेस. फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टार्टअप लिया और रजिस्ट्रेशन करा लिया, मेरे को डीपीआईटी का सर्टिफिकेट मिल गया, मैंने बेनिफिट्स लेने थे, जो लेने थे वो ले लिए, वो एक सेपरेट, वो दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. और डॉक्यूमेंट्री मैंने प्रूफ अपने बेनिफिट्स ले लिए, जो फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता था मैंने ले लिए. अब आता है मेरा स्टार्टअप, जो मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ. कुछ टाइम के बाद, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप 2 साल 3 साल 5 साल में एग्जीक्यूट हो गया, बट रन में नहीं आ पाया, वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, बिजनेस फ्रूटफुल नहीं हुआ. वो आपके कहने का मतलब ये है कि the ideas if I have taken from other countries, I must make sure that for Indian conditions and Indian standards, एग्जैक्टली it can work. यस, उनकी डोमेस्टिक मार्केट, उसका प्रॉपर सर्वे, सारी चीजें हमें चेक करनी है. You're right. आइडिया If को you कॉपी fail नहीं to करना prepare, है. you prepare Yes. to fail. Thank you. Right. Thank you, sir. Right. So stage of funding की बात कर रहे हैं हम. तो pre-seed funding, known as a pre-seed funding, this stage typically refer to the period in which the company's founders are first getting their operation off the ground. And the most common pre-seed funders are the founders themselves, as well as the close friends, supporters, and the family. Depending upon the nature of the company and the initial setup with the developing the business idea, and the funding stage can happen very quickly or may take a long time. During this time, getting funding from the external investor is almost impossible, because अभी हम on paper नहीं है, आप सिर्फ idea के stage पे हैं. During this time, getting funding from the external investors is almost impossible, as the company is still in the ideation stage and has not yet started generating revenue. जब तक revenue generate नहीं होता, no one is ready to invest. And seed funding is the first official equity funding stage, and is typically represent the first official money that a business venture or enterprises raise. You can think of the seed funding as a part of an analogy for the planting a tree. Early financial support is ideally the seed which help to grow the business, right? So there are many potential investors in seed funding: founders, friends, families, incubators, venture capitals, companies, and more. More of the more एंजल इन्वेस्टर्स है. देन उसके बाद हम सीरीज 1, जैसे आपका जनरेट कर लिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया. Once a business has developed a track record, established a user base, consistent revenue figures, or some other key performance indicator, the company may opt for a Series A funding in order to further optimize its user base and product offering. Then we can move with the Series B, Series C. ऐसे हम सीरीज में जाएंगे. लास्ट में if you want, we can take a help of IPO. So biggest question following a startup, अगर हम बात करें fund raising question, how much fund should I raise, when should I raise the money, at what stage should I not, what are the relevant source of finance for me, and how should I prioritize them, how much equity should I give, how much I give equity when I am unable to value my startup, how should I reach out the investors, and what is the right structure. So this is the only way कि हमें how much funds के बारे में पता होना चाहिए,
की टेक अवे डिल्यूट फेज वाइज करनी है, ऑफलोडिंग द इनिशियल इक्विटी शुड आइडली बी 10%, नेगोशिएट, डोंट टेक अ मनी ब्लाइंडली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आज की डेट पे क्या होता है, स्टार्टअप आते हैं, अगर कोई पेमेंट करना भी चाहता है तो हम फटाफट पेमेंट ले रहे होते हैं। सो डोंट टेक, हमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी स्टेक मार्केट में वो लगा रहा है। सो वी डोंट टेक अ मनी ब्लाइंडली, कि किसी से भी पैसा नहीं लेना, ऑलवेज हैव अ मेजोरिटी कंट्रोल ऑन योर कंपनी एंड साइन अ टर्म शीट्स, कुछ अभी आएंगे। एंड फंडिंग की बात करें, बूट स्ट्रैपिंग अगर हम खुद अपना बिजनेस में फंडिंग लगाते हैं, सेल्फ फंडिंग इज ऑल्सो नोन एज अ बूट स्ट्रैपिंग। देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ अ क्राउड फंडिंग, आजकल चल रहा है। सो क्राउड फंडिंग कि हमने स्मॉलर अमाउंट क्राउड से लिए, तो वो क्राउड फंडिंग हो गई। देन एंजल इन्वेस्टर्स, राइट, एंजल इन्वेस्टर विद सरप्लस कैश एंड कीन इंटरेस्टेड ऑफ, जो हाई नेटवर्थ जो एनआरआईज होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स के वे में काम कर रहे हैं। Venture capitalists are the professionally managed funds who invest in a company that have a huge potential to grow. They usually invest a business against equity and exit when there is an IPO. Funding from the business incubators and accelerators जो भी हमने किया. Then government की जो startup की programs होते हैं, schemes होती हैं, हम उनसे भी ले सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं. Some startup which benefit from their startup India schemes. तो ये एक टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी स्टार्टअप इंडिया की, जो उनको बेनिफिट्स मिले हैं। ये दो हैं, इसको डिस्कस नहीं करना। अब प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा लिया, स्टार्टअप के बारे में पता चल गया। प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर हमें पता ही नहीं होता कब हमें करना है स्टार्टअप को, अपने ट्रेडमार्क को कब अप्लाई करना है, पेटेंट को कब रजिस्टर कराना है। तो हमारे को लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द आईपीआर होनी चाहिए। सो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज। So intellectual property होती क्या? It means a legal right resulted from an intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic work, and it is a cluster of a legal recognized rights. So any property arises from the human intellect is a product of a human creation. So literary and artistic work and industrial properties. So literary and artistic work, how they are protected by copyright, and industrial property are is a described physical matter that is a product of an idea and concept for a commercial use. How they are protected? They are protected by patent object, patent, trademark, industrial design, trade secrets, layout design and geographical indication. बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक मतलब एवरी प्रोडक्ट में अगर हम जब पेन इन्वेंट नहीं हुआ था, जब इन्वेंशन नहीं हुई थी, जैसे हम बात कर रहे थे इनोवेशन की, तो किसी ने सोचा होगा हम कैसे हम लिखते थे। एक फाउंटेन पेन एक बनाया जिसने स्टोर इंक करी, तो वो इनोवेशन हुआ तो पेटेंट हुआ। देन यूटिलिटी मॉडल फॉर अ ग्रिप एंड पेपर फॉर द इंजेक्शन ऑफ इंक, तो फिर उसकी जो रिफिल बनी उसकी यूटिलिटी मॉडल बनी। देन इंडस्ट्रियल डिजाइन, स्मार्ट डिजाइन विद द ग्रिप इन द शेप ऑफ एन एरो, उसके डिजाइन बने। हर पेन के अलग अलग डिजाइन हैं। ट्रेडमार्क, जैसे हर ट्रेडमार्क मतलब हर पेन के अलग अलग मार्क्स हैं, जैसे सेलो, रिनॉल्ड्स और पार्कर एंड मेनी मोर। तो ट्रेडमार्क मतलब वन प्रोडक्ट मैनी आईपीआर। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स एंड फार्मर्स राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? टर्म्स ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल 2010 में ट्रेडमार्क अप्लाई किया और आपको ट्रेडमार्क मिलते हुए 2014 हो गए, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट है। क्योंकि जब आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया तब आप उसको टीएम वर्ड लिख रहे थे, राइट, आप उसका टीएम वर्ड लिख रहे थे। अब आपकी जो वैलिडिटी है ना वो 10 इयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट। ठीक है, डिजाइन का 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, पेटेंट का 20 इयर्स, जीआई का 10 इयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराना है। अगर रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो हमारे पास आईपीआर के राइट्स नहीं होते हैं। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क है तो लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्ड, गवर्नमेंट वर्क्स, पब्लिक अंडरटेकिंग, इंटरनेशनल एजेंसीज, फोटोग्राफ्स हैं तो 60 इयर्स हैं। हम ट्रेडमार्क किस किस को करा सकते हैं? नेम को, लोगो को, सिंबल को, स्लोगन को, शेप को, कलर्स को। देन दैट इज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड आपका आईपीआर रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होते हैं। सो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, अप्लाइंग फॉर अ बिजनेस लाइसेंस, अटेंडिंग टू द लेबर लॉ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ इट इज एप्लीकेबल ऑन योर स्टार्टअप,
MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, फसाई रजिस्ट्रेशन इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ एनी फूड्स जिसमें फसाई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस चाहिए। अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट IC इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो यू मस्ट रिक्वायर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस एंड अदर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन IPR रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होने चाहिए अगर आपको स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है। Other license and registration, certain types of registration that involves, for example, if you are doing a business of insurance, you must have taken a approval from the IIDA. If you are doing a business of financial, then you must have taken a approval from the Reserve Bank of India and lots of more, right? And that is, इंश्योरेंस yes. वगैरह स्टार्टअप में कैसे आ जाएगा? इट्स नॉट एन इनोवेटिव आइडिया। नहीं, इंश्योरेंस क्या कह रहे हैं सर? इंश्योरेंस के अगर आपका कोई बिजनेस है सर, आपने अभी पॉलिसी बाजार देखा होगा जी। पॉलिसी बाजार ऐसे इंश्योरेंस के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी इनोवेशन, देखो देयर इज अ टू वे। अभी हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा था, या तो स्टार्टअप की बेनिफिट्स लेने हैं हमें, तो या तो वो इनोवेशन होना चाहिए, या फिर एक सेकंड क्लोज था कि आप वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हो। ठीक है। If you are taking a wealth generation or employment generation का भी काम करो, then you are covering under this license ना? That means not insurance or financial service, but something to facilitate and ease of business for doing that. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे थे? दोबारा से रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ that means not doing insurance business or providing financial services, but some app to facilitate providing of multiple options with you to the potential buyer, etc. Is that what you mean? Because policy Yes, sir. bazaar जो है, it only gives you Yes. different various options, compares for you. एग्जैक्टली सर, राइट। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इंश्योरेंस का जैसे भी काम कर रहे हैं, आप उसमें मीडिएटर हैं, आप कमीशंस ले रहे हैं, राइट? आप लॉस असेसर का काम कर रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस का मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप इंश्योरेंस की कंपनी, जैसे मैंने IID लिखा, आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसके अंदर आप इंश्योरेंस का लॉस असेस कर रहे हो, ठीक है? इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर है, और उसका कुछ इनोवेशन करके या उससे रिलेटेड आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू और वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द IDA ना। मतलब ऐसे बिजनेस हमें देखना है कि हमारे जो बिजनेस जिस इंडस्ट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास उसकी सारी अप्रूवल्स होनी चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है कि लाइसेंस, अगर आप स्टार्टअप्स हैं, अब आप उस चीज से भूल जाइए कि अगर हम, फॉर एग्जांपल, हम वी आर नॉट टेकिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, मेरा इनोवेशन नहीं है बट वो स्टार्टअप है, राइट? जो इनोवेशन वर्ड है वो स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट लेने के लिए, राइट? तो मैं अगर कुछ बिजनेस कर रहा हूं, मैंने आप स्टार्टअप के लिए बोला और मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे पे फंडिंग आ रही है, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये नहीं चेक करेगा कि आपका इनोवेशन है, वो उसकी बिजनेस की कैपेबिलिटी चेक करेगा, उसकी वायबिलिटी चेक करेगा कि आपकी जो प्रोजेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे रियलिटी में या नहीं होंगे। और जहां जहां पर भी आपकी जो भी आपकी मतलब इंडस्ट्री है, तो उसके क्या आपके पास सारे अप्रूवल्स हैं या नहीं है। क्योंकि जब आप लोग ड्यू डिलिजेंस करोगे, बीइंग अ प्रोफेशनल, हम लोग ड्यू डिलिजेंस करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है, यही सब चेक करना है। शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट स्टैंपिंग है, जो भी लाइसेंस इसके रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल GST रजिस्ट्रेशन है, तो GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल था, GST रजिस्ट्रेशन वैलिड है। IPR में इनके जो ट्रेडमार्क हैं वो उनका टर्म तो एक्सपायर नहीं हो गया, रिन्यूअल हो गया प्रॉपरली, राइट? अगर ट्रेडमार्क में चेंज कर रहे हैं तो असाइनमेंट की डीड फाइनल है। तो यही सारी चीजों को हमें एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल चेक करना है, और बीइंग अ स्टार्टअप इन सबको मेंटेन करना है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन में कंप्लाई कर रहा हूँ, क्लीन रिपोर्ट है मेरी, तभी कोई आपको स्टार्टअप में फंडिंग देगा। ठीक है, थैंक यू। एंड सो अभी हमने देखा देन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो बहुत मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। फाउंडर्स एग्रीमेंट, आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं स्टार्टअप की बात करते हैं और एग्रीमेंट्स नहीं है, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसमें एग्रीमेंट फाउंडर की सारी रूल की, जैसी कंपनी फ्लो कर जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर जाएगी, और उसके अंदर राइट होना चाहिए कि मतलब
एक ब्लॉक इवन पॉइंट होना चाहिए कि कितने 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन फाउंडर्स जो हैं वो एग्जिट रूट नहीं लेंगे। तो ऐसे ही फाउंडर्स एग्रीमेंट जो है कि ये शेयर ट्रांसफर कहीं वो कॉम्पिटिटर को जाके तो नहीं शेयर ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरा फाउंडर है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब उसको लगा तो उसने क्या किया, कॉम्पिटिटर को ही अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। तो हमें इन चीजों के क्लोज बनाने पड़ेंगे, फाउंडर्स एग्रीमेंट। बहुत सारे एग्रीमेंट्स अगर मैं आपको बोलूं, इसके सारे फॉर्मेट्स आपको स्टार्टअप इंडिया की साइट पे जाके मिल जाएंगे। आपको अगर ये फाउंडर्स एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एनडीए, आपके एम्प्लॉइज आ रहे हैं और आपने कोई इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हो और सेम उसने जाके बाहर किसी आपके कॉम्पिटिटर को ही बता दिया, तो यू मस्ट हैव साइन द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करने के लिए ये चीजें आपके पास कंपल्सरी है होना। So some general mistake that entrepreneur which must be avoided: choosing wrong legal structure for a business, right? So जैसे मैंने अपना सबसे पहले स्टार्ट किया था कि लीगल स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो राइट लीगल स्ट्रक्चर जो है वो आपको लीगल स्ट्रक्चर आपको चूज करना है। देन सेकंड इज नॉट मेकिंग द क्लियर डील विद द को-फाउंडर्स, non-execution of the non-disclosure agreement, lack of employment documentation with the employees of the company, not carefully considering the IP protection, not having a good terms of a use agreement and privacy policy of your website, failure to obtain a necessary license and permits, non-compliance with the security laws, and think बहुत हमारे इंडियन में एक है ना कि जब प्रॉब्लम आएगी तब देख लेंगे, think any legal problem can be solved later, राइट। सो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। आप क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेते हैं सर। थैंक यू सर। वैसे तो आपका काफी डिटेल्ड है, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। बिल्कुल सर, पूछिए सर। सर ने तो एक तो सर का ही क्वेश्चन था, सर ने तो अपना कवर कर ही लिया। राइट सर। वो यदि नहीं है तो पुरी साहब बाद में पूछ लेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। अनिरुद्ध अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर, हैजंट द डेट लिमिटेशन फॉर ATIAC जो कि 1 अप्रैल 2022 थी, बढ़ी है अभी डेट या नहीं बढ़ी है? बढ़ गई है सर, फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। तो 2023 हो गई इसका मतलब? नहीं 22 हुई है, 21 या 22 हुई है सर। सर 1 अप्रैल 2022 भी तो गई ना? नहीं अब नहीं बढ़ी ना सर, मैंने वही तो बताया कि हमारा सेशन लेट लगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर की डेट आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब वो ATIAC की डेट इज ओवर। हाँ ओवर, यस। पहले मतलब इनकॉर्पोरेशन की डेट ओवर है सर। इनकॉर्पोरेशन इसके बाद होगी तो आप टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले सकता। अगर इसके पीरियड में, देखो सर मैं क्लियर करता हूँ, 2016 में इनकॉर्पोरेशन पहले लॉ आया था। कोई भी स्टार्टअप अगर 2016 की इनकॉर्पोरेशन डेट आ रही है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ टैक्स बेनिफिट्स के लिए, जैसे DPIIT की रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने 3 एंटिटी बताई थी, एक LLP बताई थी, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बताई थी और एक थर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। बट ये जो टैक्स का बेनिफिट लेना है उसमें रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि टैक्स का बेनिफिट सिर्फ 2 एंटिटीज ले सकती हैं, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या LLP हो। एक बात। दूसरी बात, मैंने उसमें लिखा था कि वो जो इनकॉर्पोरेशन डेट है इट शुड बी बिटवीन मतलब इट शुड बी आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद होनी चाहिए, और बिफोर पहले जो लॉ था वो था 1 अप्रैल 2021 था। अभी जो फाइनेंस एक्ट जो बजट में आया उसमें 1 ईयर जो हमने देखा कि 1 ईयर स्टार्टअप की टैक्स एग्जम्पशन की डेट बढ़ा दी है। तो आज जो लास्ट है वो 1 अप्रैल 2022 ही है, इसके बाद नहीं बढ़ी है। यानी कि कोई सर लोगों का नहीं, मेंबर का ये कहना है कि सपोज आज मैं स्टार्टअप रजिस्टर्ड करें LLP, रजिस्टर्ड नहीं, मेरी बात सुनो, मैं इनकॉर्पोरेशन डेट बोल रहा हूँ सर। इनकॉर्पोरेशन डेट अगर इनकॉर्पोरेट करें मींस रजिस्टर्ड मींस इनकॉर्पोरेट करें, यस, तो आप उस टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले सकते। 3 इयर्स की टैक्स एग्जम्पशन इज ओवर नाउ। हाँ यस। नहीं 3 ईयर वाली है, ATIAC की नहीं है राजेश जी, 3 ईयर वाली तो है। ATIAC की तो बात कर रहे हो सर? नहीं वो 3 ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा ATIAC की नहीं है, 3 इयर्स की है। 3 ईयर वाली है। और दूसरा क्या है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ना आपका LLP का या ROC के से, वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 से पहले का। आप स्टार्टअप बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिरुद्ध अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, कैन सीड फंडिंग एंड एंजल फंडिंग यूज इंटरचेंजेबली? सर इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी स्टार्टअप कि
जैसे स्टेज की वाइज से फर्स्ट सीड फंडिंग आती है, फर्स्ट सीड फंडिंग के बाद एंजल इन्वेस्ट फंडिंग आती है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स अगर आपको लग रहे हैं कि वो आपके फर्स्ट जो आपका आइडिया बहुत इनोवेशन वाला है और वो चाह रहे हैं आपको इन्वेस्ट करना, तो आप वो पहले कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली होता है, बट सीड फंडिंग पहले होता है, क्योंकि सीड नाम से ही पता चल रहा है, जब हमने पौधा रखा बीज तब डाला। आपको जो फंडिंग बीज डाला तो ही आपको फंडिंग मिली, फिर उसके बाद स्टेप चेंज होते रहते हैं, फिर एंजल, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर आगे चलेंगे। वैसे मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी फंडर सीड कैपिटल नहीं यस देता, वो यस चाहते हैं भैया कुछ आपका भी तो राइट स्टेक पे हो। आप एग्जैक्टली कुछ करके तो राइट, दिखाओ, तभी तो पैसे तभी मैंने देगा वो। बताया था, यस, क्योंकि आप पहले सीड फंडिंग डालोगे उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष अग्रवाल जी हैं। इज स्टार्टअप फंडिंग concepts conflict with unsecured loan guidelines? As per Companies Act, loan is allowed only for director/relatives, not from general public. Startup funding concept conflict the unsecured loan guidelines. As per the Companies Act, loan is allowed only for the, आप एक बार ना सेक्शन 73 पढ़ेंगे, सेक्शन 73 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस लोन देना, लाइक एनबीएफसी या वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर्स हैं, तो वो अलाउड है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। Okay. सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट नहीं, में उनके कहने सेक्शन का मतलब ये है, आपने कहा था ना फ्रेंड सर्कल से ले सकते हैं, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वो अलाउड नहीं होगा बिकॉज ओनली डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स कैन गिव बट अनसिक्योर्ड। अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट कोई रिकॉग्नाइज स्टार्टअप जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या कोई एनबीएफसी हैं, तब तो ले सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल, अगर अदर देन फैमिली फ्रेंड से लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स ही आते हैं सेक्शन 73 के अंदर, उससे अगर नहीं ले सकते। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कुलदीप चौहान जी पूछ रहे हैं, 100 सब्सिडी कैन बी स्टार्टअप? 100%, 100% 100% 100% 100% सब्सिडरी कैन बी स्टार्टअप। स्टार्टअप, देखो देयर इज अ टू वर्ड्स, अगर आप स्टार्टअप इंडिया की रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सिमिलर टाइप्स का कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आपकी 100% सब्सिडरी और आपकी होल्डिंग कंपनी कुछ और बिजनेस कर रही है और आपने कोई नया कंसेप्ट लाया है जो होल्डिंग कंपनी कर रही है उससे रिलेटेड नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ले रहा हूँ कि मेरा कोई बिजनेस चल रहा है और मुझे लगा कि क्योंकि मैं 10 ईयर्स एक्सीड कर चुका हूँ और मैं सेम बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई कंपनी बना लेता हूँ और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ और उसको स्टार्टअप डिक्लेयर कर लेता हूँ और स्टार्टअप के बेनिफिट्स ले लेता हूँ, राइट। तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस कर रहे हो तो अलाउड नहीं है। अगर आप न्यू बिजनेस करते हो तो सब्सिडरी अलाउड है एज अ स्टार्टअप, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो बॉडी है वो सब सेम होगी। उसकी होल्डिंग कंपनी का अगर सेम बिजनेस है तो अलाउड नहीं है, अगर अलग बिजनेस है तो कर सकते हैं। और भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, या फिर बाइंड अप करें। विवेक जी, अगर हाँ जी। राजेश जी परमिशन हो तो मैं अरे पूछूं? सर अरे सर पूछे सर। सर विवेक जी, ऐसा है कि ये जो मैंने शुरू पूछा था ना कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, राइट उसके जो मेरे एक्सपीरियंस में है उसमें 2-3 रीजन जो मैंने बड़े क्लियरली देखे हैं। राइट एक तो ये है कि भेड़ चाल सी हो गई है राइट, बिल्कुल कि ठीक है। स्टार्टअप मैं भी शुरू कर लेता हूँ यस विदाउट यस इवन थिंकिंग ऑफ द मोडालिटीज, विदाउट राइट। थिंकिंग ऑफ व्हाट गोज इनटू द स्टार्टअप एंड दैट इट शुड बी एन एब्सोल्युटली न्यू आइडिया। दूसरा, ये जो वेस्टर्न मॉडल को इंडिया में इम्पोज करने की कोशिश करते हैं विदाउट लुकिंग एट दिस, इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन समबडी शुड टेक? प्रॉपर क्योंकि रिसर्च, इसमें देखिए इनिशियली उस चीज को इंडिया में रेकी करने के लिए भी एक्सपेंस बहुत हो जाता है, राइट क्योंकि अगर आप एक स्टेट में भी करना चाहो इट्स ए ह्यूज 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 इन्वेस्टमेंट। राइट। उस चीज को आजकल के जो बच्चे हैं, यूज द वर्ड बच्चे, वो अवॉइड करते हैं या दे डोंट वांट टू स्पेंड सो मच, कहते हैं हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ देंगे। राइट सर, राइट, दैट ये काइंड ऑफ एन कहता एटीट्यूड इज था। देयर। यस डेफिनेटली सर, हम भी रोज यही देख रहे हैं। हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनका माइंडसेट सिर्फ यही होता है कि वो स्टार्टअप कर रहे होते हैं। उनको एक तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनको यही नहीं पता कि एलएलपी बनानी है, कंपनी बनानी है, कौन सा मोड कनेक्ट करना है, ठीक है ना, क्या उसके, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने, जैसे अभी मैं जो कनेक्ट हुआ हूँ डीटीयू से हूँ, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, उनसे रिलेटेड हूँ, तो ऐसे इंक्यूबेटर्स में प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है, लाइक जैसे मुझे हायर किया गया। तो हम उनको ये जो सेशंस हैं या सेशंस के वे से या उनको एक पर्सनल कोचिंग के बीइंग ए मेंटर, हम उनको कोचिंग देते हैं कि बताते हैं कि ऐसे क्या है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं उनको सिर्फ
कंप्लायंसेस और इससे रिलेटेड बता सकता हूँ। सिमिलरली वो एक ऐसे मेंटर की हेल्प ले सकते हैं जो एक्सपर्ट होगा इन दैट फील्ड। अगर मैं कुछ ऐसा इनोवेशन कर रहा हूँ और वो उससे, जैसे मैं तो सिर्फ अपने लीगल कंप्लायंसेस और लीगल से रिलेटेड बता दूंगा, बट अगर कोई और ऑलरेडी बिजनेसमैन है या वो मेंटर है तो वो उसकी रिसर्च में वो हेल्प करेगा कि ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में, ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप ये स्टार्टअप लेकर आते हो और इस टाइम पे लाओगे, तो ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स ये हैं। तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि स्टार्टअप को वो करने, इसीलिए जो एक्सेलेरेटर, इंक्यूबेटर, जो कंसेप्ट आए हैं, मेंटर्स के कंसेप्ट आए हैं, वो इसीलिए आए हैं। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम ऑल ओवर इंडिया जाकर वो रिसर्च कर सकें। तो रिसर्च, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें कि कब कब क्या चीजें को मूव आउट करना है, ये सारी चीजें आपको इंक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स और मेंटर्स और जो पास एक्सपीरियंस हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो बता पाएंगे। एक चीज जो और इन बच्चों को आई थिंक यू शुड बी एबल टू गाइड बेटर, यस, कि they have an idea which is actually possibly transformable into actual working, right, but the only issue is that their idea and their concept they don't match. right. उसके लिए what should they do? जो उनका आइडिया है वो उनके एग्जिस्टेंस में नहीं आ concept जिस तरह सकता। से, हाँ, राइट सर, वो उसका यही सोल्यूशन है कि मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि 100% हर किसी का आइडिया मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बट क्या, जैसे अभी हमने बताया भेड़ चाल वाली बात करी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बस सिर्फ देख के कि भाई मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, विदाउट कि मेरा जो स्टार्टअप वो इनोवेटिव है या फ्रूटफुल है, विदाउट लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस, चाहे वो प्रोफेशनल गाइडेंस से CA/CS की हो, चाहे उनकी इंडस्ट्री की हो, लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस की वजह से वो फेल हो जाते हैं। ठीक है सर, उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रॉपर हैंड होल्डिंग होनी चाहिए उनके पास, सो दैट कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो उनको एट द इनिशियल स्टेज उसको रिजॉल्व कर सके। और काफी जो स्टार्टअप के प्रमोटर है वो इस बात से डर जाते हैं, वो इतनी कंप्लायंसेस, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू यूज द प्रोफेशनल फॉर दैट, यू जस्ट स्टिक टू योर डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। एग्जैक्टली। इसमें आपको एक बात बताऊंगा कि सर आपको भी पता है आजकल क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप आता है, वैसे हमारी मतलब जब आते हैं उनका सबसे पहले कि आपकी फीस इतनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली तो फीस इतने ले रहे हैं, वो तो इतने में कंपनी बना रहे हैं, वो तो इतने में ऑडिट कर रहे हैं, वो तो इतने में कर रहे हैं। तो उनको ये भी बताना डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी आए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर सर्विसेज ले चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, गलत डॉक्यूमेंट फाइल हो गए। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्टअप शेयर सर्टिफिकेट का लिया, तो हम बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं शेयर सर्टिफिकेट को, हम बहुत सीरियस लेते ही नहीं, क्योंकि कंपनी बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम स्टार्टअप पे फर्स्ट जैसे हमें जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई है उसकी टाइमलाइन के हिसाब से, राइट, आपको शेयर जब सब्सक्रिप्शन मनी आ गई है उसके 30 डेज के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं, उसके 30 डेज के अंदर आपको दिल्ली में है तो उसकी SDM के ऑफिस में वहाँ पे शामनाथ मार्ग में जाके प्रॉपर फाइल बनाकर उसकी स्टैंपिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी ऐसे स्टार्टअप में सर्टिफिकेट नहीं मतलब इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसपे शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं बने हुए, वो बने हुए हैं तो विदाउट स्टैंप है, रिवेन्यू स्टैंप लगा रखी है। तो ये एक लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस है, जिसकी वजह से मैं यही सबको बताता हूँ कि आप पहले शेयर सर्टिफिकेट को स्टैंपिंग जरूर कराओ ताकि वो वैलिड डॉक्यूमेंट हो, और फर्दर वैलिड डॉक्यूमेंट के बाद फर्दर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आपको बैड मिनट्स की बात करें तो हम 7-7 साल के 6-6 साल के इकट्ठे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होता है कि जो भी पिचिंग कर रही, मेरा सारे आइडियाज, बहुत सारे सक्सेसफुल जो स्टार्टअप इसलिए भी फेल हुए कि उनके आइडियाज बहुत अच्छे थे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी ली थी, बट उनकी जो लीगल कंप्लायंसेस हैं ROC की, इनकम टैक्स की, वो ठीक नहीं थी। और आपको मैं मतलब ऐसे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर कोई MNC आ गई, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गई, वो सबसे पहले तो अब Big 4 को अपॉइंट कर लेगा, सबसे फर्स्ट उसका स्टेप होगा तो Big 4 को अपॉइंट, वो इंडियन मतलब फर्म को, मैं सॉरी उससे, बट हमारे CA/CS की फर्म को नहीं बिलीव करेगा, वो सबसे पहले डिलॉयट को और KPMG को और PwC को अपॉइंट करेगा, उनसे ड्यू डिलिजेंस कराएगा, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन तो थोड़ा सा घुमा देंगे लेकिन PwC को तो पूरा पॉइंट बताना है। तो ये चीजें हैं, इसका एक रीजन ये भी है कि जिस कंट्री से आते हैं वहां पर उनके ऑडिटर वही होते हैं। एग्जैक्टली, ये भी एक स्ट्रक्चर, बिकॉज़ आई आल्सो हैव सम मल्टीनेशनल्स, उनका यही होता है जी, स्टैट्यूटरी ऑडिट उनसे कराएंगे, बाकी कंप्लायंसेस आप करो।
क्योंकि सर वो ट्रस्ट फैक्टर भी बन जाता है ना उनपे। हम्म, अब जो मेजर स्टेक होल्डर होता है उसको ये लगता है कि भाई मेरा प्रोफेशनल हो, ताकि मैं उसको मतलब ब्लाइंडली फेथ कर सकूं, रादर देन कि मैं किसी और पे हूँ कुछ भी है, क्योंकि नो वन इज रेडी टू, कि उनको पूरी बैलेंस शीट पढ़नी आएगी, ठीक है ना, और उनको इतनी सारी चीजें कंप्लायंसेस के बारे में पता होगा, तो वो क्या करेंगे कि आप पे ट्रस्ट जिसके ऊपर हो जाएगा वो उसको लेकर जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। सर ये सरिया साहब हमारे मेंबर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। सरिया साहब पूछिए क्वेश्चन ये। जी सर पूछो सर, अपना क्वेश्चन पूछो सर। सरिया साहब, योगेश जैन जी भी में आपने हैंड रेज कर रखा है, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें सर। सरिया साहब आप म्यूट पे हो। एक एक क्वेश्चन आंसर बॉक्स में दिया हाँ हुआ है। अनिरुद्ध जी का है, ले लो सर आप। हाँ, सो क्वेश्चन का ये है, इज इट बेटर टू गो इन फॉर अ एलएलपी और अ कंपनी सेटअप फॉर अ एमएसएमई गोइंग इन एज अ स्टार्टअप। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी मैंने स्टार्टअप को कंसल्टेंसी दी थी, तो उसमें यही क्वेश्चन आया था कि सर आपने अभी बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि लेस कंप्लायंसेस हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो उसमें भी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो हम क्या एलएलपी को भी एज अ स्टार्टअप कर सकते हैं? मेरा आंसर है कि यस, वो कर सकते हैं। फ्यूचर में आप ऐसा कर सकते हैं, एलएलपी को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आएगा उसको इक्विटी चाहिए होगी, इक्विटी वो एलएलपी में नहीं मिलेगी उसे। और एवरी टाइम, क्योंकि आपको सीक्वेंस में अलॉटमेंट करनी है, सीक्वेंस में सब कुछ करना है, तो एलएलपी एग्रीमेंट एक स्मॉलर उसमें आ जाएगा, और हर बार आपको उसका एग्रीमेंट को अमेंड करना पड़ेगा, राइट। तो एडवाइस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही आपको उसको कन्वर्ट किया तो करा लो। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारी अतुल सर से बात हुई कि फेल हो जाते हैं या मतलब स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, अगर मुझे पता है कि डू और डाई का सिचुएशन है, हो सकता है ये चल जाएगा, हो सकता है ये नहीं चलेगा, अगर आप श्योर नहीं हो अपने ऊपर ही, तो आपको एलएलपी बनाकर ही स्टार्ट करना चाहिए, और उसको फिर बाद में फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेना। अदरवाइज आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। सर जब तक हमारे सरिया साहब या योगेश जैन जी क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आ रहा है। हाँ जी सर, सरिया बिल्कुल। साहब आगे आगे, सरिया साहब पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टैंपिंग वाला इशू है, एक तो श्यामनाथ मार्ग पे ही होता है ना सारा, हाँ जी पूरी बिल्कुल दिल्ली सर। का। हाँ जी, पूरी अच्छा दिल्ली का सामनाथ मार्ग में ही होता है सर। अच्छा, दूसरा ये कि जो पुरानी कंपनी है जिनमें नहीं हुई स्टैंपिंग, बीच में तो 5-7 साल पहले एक बार ये इशू हाँ उठा हाँ, था, इशू उठा था तो सर। सबको नोटिस भी आई थे, फिर ये राइट सर। मामला फिर गया आया हो गया। तब हाँ, ये कब से कितनी पुरानी तक करा करा सकते हैं हम नहीं स्टैंपिंग? सर, कभी भी जाके आप खुद सू मोटो जाके, अगर आपको नोटिस नहीं आया है, हाँ आप हाँ सू मोटो जाके आप एप्लीकेशन दे देना। और हाँ। अगर लेट फीस है तो वो हेयरिंग होती है, ठीक है, अच्छा। लेट फीस के लिए हेयरिंग होती है। और आप पहले क्या था कि हाँ इनका एक स्टैंडर्ड रेट था कि डबल। 10% से लेके 10 टाइम्स तक लगा सकते थे। अब ठीक है। एड वोलरेम बेसिस पे हो गया है, राइट, कि अच्छा कितना डिले हुआ उसकी परसेंटेज के हिसाब से हो गया है। तो आप अच्छा। अपनी एप्लीकेशन मूव करके आप अपने फाइल्स लगा के रख दो। और अभी हम्म। उनके पास स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से वो अभी रुके हुए हैं। जब उनके पास स्टाफ आ जाता है, वो 6 महीने नोटिस भेजते हैं और 6 महीने हम्म। काम करते हैं, फिर 6 महीने नोटिस भेजते हैं, 6 महीने काम करते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, वो ये कंसेप्ट है हमारे डिपार्टमेंट का। बट ड्यूटी। हाँ आप चलो बताइए ऑनलाइन पहले आप। अप्लाई करके, क्योंकि आपके पास ये रहेगा कि जी मैंने इतनी तारीख को अप्लाई कर दिया था, आपकी ठीक ड्यूटी ठीक है। वहां से जो लेट फीस है वहां से बच जाएगी। अच्छा अच्छा। दूसरा ये पूछ रहा था कि इसमें जैसे वैल्यू जो लेंगे वो अपने शेयर सर्टिफिकेट की पेड अप वैल्यू लेंगे ना, अथराइज से नहीं, तो मतलब नहीं कंसिडरेशन, हाँ जी, हाँ, पेड अप है। कैपिटल और हाँ कंसिडरेशन लेंगे। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं आपने, हाँ, तो वो तो कंसिडर है। कंसिडरेशन और आएगा। हाँ और जी, कितनी ऑथराइज। क्या चीज? कुछ आइडिया हो? दोबारा बताइए सर। ये परसेंटेज क्या लेते हैं, स्टैम्प पॉइंट ड्यूटी की रेट क्या है? 0.01%, मतलब पॉइंट 1,000 रुपए, सॉरी 1 लाख की कैपिटल पे 100 रुपए। 0.01%। हाँ। योगेश जी आस्क योर आवाज क्वेश्चन। योगेश जी, सर इसमें आपने एक बार बताया था कि वैल्यूएशन का, हम्म। तो वैल्यूएशन किन से करानी होती है सर ये हमें? सर वैसे वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर से कराना होता है, और आजकल रजिस्टर्ड वैल्यूअर का भी आ गया है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का कंसेप्ट आ चुका है। तो एक्ट में कहीं जगह पर मर्चेंट बैंकर्स लिखे हुए हैं, कहीं जगह पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स लिखे हुए हैं। जैसे फंडिंग रेज करनी हो तब यस, उसमें मर्चेंट बैंकर चाहिए या दोनों ही चाहिए या? एनीवन है, डिपेंड करता है। आप मर्चेंट बैंकर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर में से किसी भी एक से ले सकते हैं। अगर स्पेसिफिक मर्चेंट बैंकर लिखा तो फिर आपको मर्चेंट बैंकर से ही लेनी होगी। इनकी कोई फीस भी सर प्रेस्क्राइब्ड है या?
नहीं फीस नहीं है, वही हमारे CACS की तरह है ये। हमारे आपकी जैसी है। हमारे जैसी है। चलिए चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? योगेश जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को, तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें। नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अतुल पुरी साहब यहाँ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुरी साहब से कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ वोट ऑफ थैंक्स भी दें सर। ओवर टू पुरी साहब। विवेक जी, आपका ये हमारे से पहला वेबिनार है, राइट बट सर। आई डोंट होप इट इज लास्ट. नहीं सर, ऐसा नहीं Because you होगा। have a very simple way of presentation, very simple Right. way of explanation. राइट You don't lose your patience, and you are always smiling. That would keep this. And thank you so very much. It has been a great pleasure listening to you, and I am sure that the members have benefited from it. In fact, it is the first session your Rajesh initiative Liya Startup Group. Okay. But I think we will need to guide us more about how to go forward after this. Right, sir. Right. That is a basic we have taken first. Then we will definitely have a more detailed. I sir specifically request Sharma ji कि please start from A to Z. Yes. Definitely. Because we are all beginner.